Hi, dear children. How are you? Dear children, today in the Environment Looking Around book, we are going to start lesson number 7. The name of the lesson is the same in continuation of the Riya's journey. We will continue our story in lesson number 7 also. In lesson number 6, we studied that Riya and her family were going to Vapi. They had reached the half of the distance. Now, let us see what the story says. It is the next day of their journey. This is 29th of May. Riya and her family started their journey from 28th of May from Gandhidham railway station. The train on which they were traveling was called as the Bhuj Express. The name of the train was the Kutch Express. Now we will start a story from 29th of May. It is 5 a.m. in the morning. सुबह के 5 बजे हैं और अब यहाँ से हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. I woke up. Our train halted at some platform. I sat and looked outside from the window. There was a clock hanging on the wall. It was 5 o'clock in the morning. Besides it, on the pillar, Vadodara Junction was written in the circled board. My brother was still sleeping. अब सुबह के 5 बजे थे और रिया जो है वो जग गई थी और ट्रेन रुकी तो उसने देखा कि कोई प्लेटफॉर्म आया है और वहाँ पर उसने जब खिड़की से बाहर देखा तो एक घड़ी वहाँ पर लटक रही थी जिसमें 5 बजे थे सुबह के और उसके साइड में एक पिलर था जहाँ पर वडोदरा जंक्शन लिखा हुआ था एक बड़े से बोर्ड में. उसका भाई हिमांश अभी भी सो रहा था. There was an instruction on mic that the trains running between Vadodara, Surat, Valsad, Vapi and Mumbai will be 2 hours late. और जैसे ये ट्रेन पहुंची वैसे ही माइक में एक अनाउंसमेंट इंस्ट्रक्शन मीन्स एक अनाउंसमेंट हो रहा था माइक पे स्टेशन पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर कि जो ट्रेन वडोदरा, सूरत, वलसाड, वापी और मुंबई के बीच में चल रही है वो ट्रेन 2 घंटे लेट है. इट इज़ लेट बाय 2 hours. Father said, brush your teeth and meanwhile I am getting tea for you. So father said it is 5 o'clock in the morning, so you all better get up, brush your teeth and I will get the tea so we can have our breakfast. We completed all our morning activities. At that time father came with the tea and mother took out thepla, khakra and biscuit for the breakfast. By the time father went down on the platform to get the tea, they all had Riya, her brother, her mother. They all completed their morning activities and father brought the tea by that time and mother took out the thepla, khakra and biscuits for the breakfast, which is a very, I think, favorite food of all the Gujaratis. When we completed our breakfast, it was daytime. और जब तक उन्होंने breakfast complete किया तब तक जो था वो दिन निकल चुका था. That means the sun has risen. अंधेरा दूर हो गया था और सूरज आ गया था तो दिन शुरू हो गया था. Still there was time for the train to start. अभी भी ट्रेन को स्टार्ट होने में वहाँ से समय था क्योंकि जैसे जैसे बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पर होल्ड टाइम जो होता है ट्रेन का वो थोड़ा ज़्यादा होता है. फादर सेड कम आई विल शो यू द फैसिलिटीज़ ऑफ द रेलवे स्टेशन. तो फादर ने क्या कहा हिमांश और रिया से कि चलो अभी टाइम है ट्रेन को जाने में तो हम स्टेशन के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है पैसेंजर्स को उसको हम देखते हैं. माई ब्रदर एंड आई गॉट आउट फ्रॉम द ट्रेन. तो रिया और हिमांश उसका भाई दोनों ट्रेन से उतरकर स्टेशन पे जो है फैसिलिटीज़ देखने गए. Dear children, this was your page number 49. Now we move on to page number 50. You can see here the platform. This is the bridge to go from one platform to another. Father showed us the facilities like ticket window, ticket checkers room, then waiting room, parcel room, toilet, bathroom, facility for drinking water, canteen, etc. on the platform. तो जब वो लोग वहाँ प्लेटफॉर्म पे उतरे तो उनके पापा ने उनको फैसिलिटी सिखाई जो कि प्लेटफॉर्म में होती है जो कि जैसे कि सबसे पहले एक टिकट विंडो होती है जहाँ पर हमको टिकट खरीदनी होती है. एक हमारे पास इंक्वायरी का भी एक
विंडो होता है जहाँ पर कोई भी ट्रेन आने जाने वाली होती है या कोई आपको पूछताछ करनी है तो आप इंक्वायरी में कर सकते हैं। फिर एक टिकट चेकर का, टिकट कलेक्टर का एक रूम होता है। जो भी ट्रेन वहाँ से जाती आती है और कोई भी पैसेंजर वहाँ पे उतरता है तो एट द गेट वहाँ पर उसको वो टिकट जो है वो देनी होती है। इससे पता लगता है कि जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ट्रैवलिंग विथ टिकट, और दूसरी बात कहाँ से पैसेंजर्स कितने कहाँ से ट्रैवल करते हैं। फिर एक वेटिंग रूम था। वेटिंग रूम का मतलब होता है कि जब कोई ट्रेन ऐसा होता है कि कभी कभी डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह का, पर तो हमको पहले एक स्टेशन जाना पड़ता है और वहाँ से हमको दूसरी ट्रेन का कनेक्शन मिलता है, तब हम वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ट्रेन जो कनेक्टिंग ट्रेन होती है उसके बीच में और जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं उसके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप के बीच में जब हम स्टेशन पे रुकते हैं तो एक वेटिंग रूम होता है जहाँ पर हम वेट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द वेटिंग रूम। और उसके बाद एक पार्सल रूम होता है। ट्रेन्स में जो होता है बहुत सारा सामान, जैसे मैंने गुड्स ट्रेन बताया था आपको, वैसे ही हर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के साथ एक बोगी जो होती है वो पार्सल की होती है, जो कि जिसमें कि जो सामान होता है जिसको कि ट्रेन के थ्रू वन प्लेस टू अनदर भेजा जाना होता है, इट गोज बाय दैट। तो एक पार्सल रूम होता है, वहाँ पर सारे पार्सल्स रखे जाते हैं। And the simple toilet and bathrooms are always there. Then drinking water facility, which is very essential, that is also there. And there are certain canteens either which is run by the private hawkers or कुछ government run canteens भी होते हैं for the food stuff. We saw many trains at the station from the bridge which was used for crossing the platform to one platform to another. Now you can see here, this is the bridge which is used to cross from one platform to another. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ आप उस प्लेटफॉर्म से चढ़ते हैं, फिर एक ऐसा ब्रिज होता है, फिर वापस दूसरा प्लेटफॉर्म जहाँ पर होता है वहाँ पर ये सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं। इन बिटवीन जो होती हैं वो रेलवे लाइन्स होती हैं, तो आप ट्रेन्स को आते जाते देख सकते हैं। तो वैसे ही रिया और हिमाक्ष ने भी बहुत सारे ट्रेन्स को आते जाते देखा जब वो ब्रिज पर चढ़े थे। We saw the railway staff pouring water from the carriages, cleaning the train. Some sweepers were cleaning the railway tracks. We had no idea how much time flew during our visit to the station. अब जब ये लोग वहाँ पर स्टेशन विजिट कर रहे थे, सब फैसिलिटीज़ को देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो है एक रेलवे स्टाफ वाले थे वो कैरेजेस के अंदर यानी कि रेलवे कोचेस के अंदर पानी भर रहे थे, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत होगी, इसलिए वो लोग उसमें पानी भर रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे जो लोग थे वो ट्रेन को क्लीन भी कर रहे थे। उसके बाद सम स्वीपर्स वे क्लीनिंग द ट्रैक्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें देखते देखते उनको पता ही नहीं लगा कि कितना समय जो था वो बीत गया। I came to know more about the railway facilities. Indeed, it was enjoyable and took photographs and videos of some facilities from my father's mobile. ये सब देखते देखते जो है बहुत सारा समय भी निकल गया और उनको हिमाक्ष और रिया को बहुत सारी इसके बारे में जानकारी हुई। The new learned a lot about the facilities that are provided by the railways. तो ये उनके लिए जो था जो ट्रिप टू द रेलवे स्टेशन was really enjoyable. उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी लिए अपने फादर के मोबाइल में से। Now it is 29th of May, 7 a.m. in the morning. Now there was an instruction on the mic that the train would leave Vadodara within 2 minutes. We got into our carriage. Train started. मतलब सुबह 5 बजे ट्रेन पहुंची थी और उसके बाद अभी 7 बजे हैं, लेकिन ये लोग they were still on the Vadodara station. So it was a pretty long time that the train halted there. और उसके बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि अब थोड़ी ही देर में जो ट्रेन है वो वडोदरा स्टेशन को लीव करेगी। तो वो लोग रिया, हिमाक्ष और उसके फादर सब जो है ट्रेन के जो उनके अपना कोच था उसमें तो वो कंपार्टमेंट में बैठ गए और ट्रेन शुरू हुई। It was morning, atmosphere was very beautiful outside. सुबह था, early in the morning थी, इसलिए atmosphere भी बहुत अच्छा था। Moving on to page number 51. Our train was passing level crossing where people were waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. Their buses,
There were buses, cars, auto rickshaws, cycle, scooter, and goods trucks, etc. Vehicles were waiting. Some people did not switch off their engine of their vehicle. Due to this, there was a lot of smoke and noise in the atmosphere. Some people were crossing below the parts of the level crossing and stood near it. How dangerous it is! तो जैसे ही उनकी ट्रेन, क्योंकि अभी तो वडोदरा स्टेशन पर ही थी, और जैसे ही आगे बढ़ी तो ट्रेन जो होती हैं कुछ नियर बाय सिटी एरियाज़ में से ट्रेन के रेलवे ट्रैक्स होकर निकलते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज रेलवे क्रॉसिंग्स जो होती हैं. दिस इज़ कॉल्ड एज लेवल क्रॉसिंग, और रेलवे क्रॉसिंग भी इसको हम कहते हैं. जो तो दोनों तरफ जो थी रेलवे क्रॉसिंग के, यू कैन सी द व्हीकल्स ऑन बोथ द साइड्स वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास. दिस इज द रेलवे ट्रैक. ये जो है वो बार्स होते हैं, एक इस तरफ होता है और एक इस तरफ होता है. ये बार्स लगा दिए जाते हैं, इसलिए नो व्हीकल कैन क्रॉस द रेलवे ट्रैक व्हाइल द ट्रेन इज कमिंग टू अवॉइड द एक्सीडेंट. तो इस तरीके से बहुत सारे व्हीकल्स, ट्रक्स थी, बसेस थे, ऑटो रिक्शाज थे, साइकिल थे, स्कूटर्स थे, गुड्स ट्रक्स थे. तो देयर वर सो मेनी व्हीकल्स दैट वर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास. कुछ लोगों ने अपने इंजन जो थे वो बंद कर दिए थे, लेकिन कुछ लोगों ने अपने इंजन अभी भी स्टार्ट रखे थे अपने व्हीकल से, जिससे कि बहुत सारा स्मोक और नॉइज़ जो था एटमॉस्फेयर में सुनाई था. तो इट वॉज डिस्टर्बिंग. और बहुत सारे लोग जो थे, बिकॉज जो वॉकिंग जा रहे थे वो लोग, बहुत सारे लोग बास के नीचे से भी निकल रहे थे, विच इज़ वेरी डेंजरस. वी शुड अवॉइड डूइंग दैट. हमको कभी भी ट्रेन के आने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ही लेवल क्रॉसिंग या रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करना चाहिए. इस तरीके से जब बार्स लगे हुए होते हैं, बार्स बंद होते हैं, रेलवे क्रॉसिंग अगर बंद होता है तो कभी भी बार्स के नीचे से ऐसे निकलकर जो है हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए. एनी मोमेंट द ट्रेन कैन कम एंड एक्सीडेंट कैन occur, which is quite fatal. Now, at the same time, our train crossed another train. Himaksh and I tried to count the carriages of one such train, but both the trains were going very fast, so we could not count the carriages. जब उनकी ट्रेन ऐसे थी, ये एक रेलवे ट्रैक है, इसके साइड में एक दूसरा रेलवे ट्रैक भी होगा. तो जब उनकी ट्रेन जो थी लेवल क्रॉसिंग पे जा रही थी, तभी वहाँ पर एक दूसरी ट्रेन भी थी, वहाँ से क्रॉस कर रही थी, विच वॉज द गुड्स ट्रेन. और हमेशा जो गुड्स ट्रेन होती है उसमें जो नंबर ऑफ बोगीज होते हैं या जो गुड्स कैरियर्स होते हैं उनके नंबर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं. तो हिमांश और रिया ने ट्राई किया कि वो काउंट करे कितने बोगीज़ हैं उस गुड्स ट्रेन के अंदर, कितने कैरेजेस हैं, लेकिन ट्रेन वॉज रनिंग वेरी फास्ट, सो दे वर नॉट एबल टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेजेस. नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 52. Later, I was sitting near the window. अब रिया जो थी वो विंडो के पास बैठी थी, विथ माई आईज क्लोज्ड, और उसकी आंखें बंद थी. सडनली द साउंड ऑफ द ट्रेन चेंज्ड, और जैसे वो आंखें बंद करके बैठी थी तो उसको लगा कि ट्रेन जैसे रेगुलर आवाज़ आती है ट्रेन के चलने की, वैसी आवाज़ नहीं आ रही थी. द साउंड ऑफ द ट्रेन मूविंग ट्रेन चेंज, खड 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 ऐसे आवाज़ आने लगी. आई ओपन माई आईज. Guess what I saw? My train was crossing over a big river. और जैसे आवाज़ बदली तो उसने अपनी आँख खोली और उसने देखा क्या कि उनकी ट्रेन जो थी एक बड़े से ब्रिज के ऊपर से जा रही थी. बहुत ही बड़ा ब्रिज था, एक बड़ी सी नदी के ऊपर से. मदर सेड दैट द ब्रिज इज़ of Narmada. It is a bridge of Narmada river. This is the largest river of Gujarat. Its water is given away to far away areas through the canals. तो ये जो पिक्चर आप देख सकते हैं ये एक नर्मदा रिवर का जो है वो पिक्चर है. इसके ऊपर एक ये देखिए बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है. एज यू ऑल नो दैट नर्मदा रिवर जो है वो बहुत ही बड़ी, मतलब सबसे बड़ी रिवर है गुजरात की. और यहाँ इसका पानी जो है, नर्मदा रिवर का पानी इवन अप टू द कच्छ जो है इसका पानी पहुँचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कैनल्स. तो मम्मी ने बताया, रिया की मम्मी ने बताया कि ये नर्मदा रिवर है और इसके ऊपर जो ब्रिज बना है उससे हमारी ट्रेन पास हो रही है, जो कि गुजरात की सबसे बड़ी नदी है.
आफ्टर अ वाइल अनदर टू ब्रिजेस वेयर सीन, और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने दो और ब्रिज देखे. सम स्मॉल व्हीकल्स वेयर पासिंग थ्रू इट, तो इसके ऊपर से कुछ छोटे छोटे व्हीकल्स जा रहे थे. फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड एज द गोल्डन ब्रिज, इज अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज. फिर उसके फादर ने उनको उस ब्रिज के बारे में बताया कि जो पहला ब्रिज था उसको हम गोल्डन ब्रिज के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत पुराना और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है. ब्रिज को हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए क्योंकि बहुत बड़े हैवी व्हीकल्स जो हैं उसके ऊपर से क्रॉस करते हैं. अगर ट्रेन वाले होते हैं तो वो तो उससे भी ज़्यादा, बिकॉज सो मेनी ट्रेन्स pass onto that bridge. The another bridge beside it was built over Narmada. It is known as the biggest केबल ब्रिज ऑफ इंडिया. और जो दूसरा ब्रिज उसके पास था वो नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ था, जिसको कि हम केबल ब्रिज के नाम से जानते हैं, और हमारा इंडिया का वो सबसे बड़ा केबल ब्रिज है. अगर आप क्लोज देखें तो यहाँ पर देखिए आपको वायर्स दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो वायर्स से बना हुआ ब्रिज है, इसकी ये वायर्स तो स्टील के ही हैं, लेकिन इसलिए जो बिकॉज ये केबल के फॉर्म में इसको दिया गया है, इसका फॉर्म जो है केबल का दिया गया है, इसलिए इसको केबल ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज है. दो इट इज समर द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर. इवन दो गर्मियाँ थी फिर भी नदी में बहुत पानी था. सम फिशरमैन वेयर सीन स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट. वहाँ पर कुछ फिशरमैन दिखाई दिए जो अपनी बोट से नदी के पानी में जाल बिछा रहे थे मछली पकड़ने के लिए. द ब्रिज वॉज सो लॉन्ग दैट वी इंजॉयड वॉचिंग द सराउंडिंग्स. क्योंकि नर्मदा रिवर बहुत बड़ी है तो उसके ऊपर जो ब्रिज बना वो भी बहुत बड़ा है, तो दोनों भाई बहन को बहुत ही मज़ा आया आसपास की सराउंडिंग्स देखते हुए ब्रिज को क्रॉस करते गए. Father said our train passed through the bridges like Sabarmati, Vatrak, महिसागर एंड विश्वामित्री वाइल यू बोथ वेयर स्लीपिंग. और उसके बाद उनके पापा ने क्या बताया, इसके अलावा हम और जो ब्रिजेस के ऊपर से पास हुए जब आप लोग रात को सो रहे थे, उनमें थी साबरमती विच इज़ इन अहमदाबाद के आसपास आते हैं, एक वात्रक नदी है, महिसागर नियर मेहसाना, फिर ये विश्वामित्री विच इज़ इन वडोदरा. तो इस तरीके से वो लोग सो रहे थे तब इन चार नदी के पुलों पर से भी ट्रेन जो है ब्रिज पर से क्रॉस हुई. नाउ Bridge of Tapi river will be near Surat will come, don't miss it to see. और अब इसके बाद नर्मदा के ब्रिज के बाद अब जो नदी आने वाली थी वो थी तापी रिवर, जो कि सूरत के पास है और वो भी काफ़ी बड़ी नदी है. इट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स. जैसे नर्मदा है उसके बाद तापी काफ़ी बड़ी नदी है जो कि सूरत के पास है और उसका पुल भी बहुत ही अच्छा है. तो उनके फादर ने कहा डोंट मिस टू सी दैट ऑल्सो. It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were seen visible near the river bank area. और बाहर का जो विंडो से वो लोग बाहर देख रहे थे, the scene was really really beautiful क्योंकि चारों तरफ it was totally green. Everywhere the area was covered with green crops जो दिख रहे थे आसपास के नदी के river bank मीन्स नदी के आसपास के एरिया में. In some fields there was farming of bananas. Green trees were seen all around. The breeze was very cool. और आसपास के एरिया में, क्योंकि वडोदरा उसके आसपास के एरिया में बनाना की जो होती है खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर बहुत सारे बनाना के फार्म्स दिखे और बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज दिखे और बहुत ही ठंडी हवा जो थी वहाँ पर उनको फील हो रही थी क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी, पेड़ ही पेड़ थे, तो हवा भी बहुत ही ठंडी थी. I had never experienced this type of cool breeze in गांधीधाम. तो रिया ने क्या कहा कि मुझे तो कभी गांधीधाम में ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि इतनी ठंडी कूल ब्रीज भी हो सकती है. हमको तो कभी गांधीधाम में ऐसा मिला ही नहीं है. We were busy in observing scenes while मामा कॉल्ड ऑन द मदर्स मोबाइल. और दोनों भाई बहन बाहर जो थे ब्यूटीफुल सीन्स देखने में बिजी थे, तभी उनके मामा ने उनके मम्मी के फ़ोन पर मम्मी को फ़ोन किया. ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अस अप. और वो जो थे वो रेलवे स्टेशन इन लोग को लेने के लिए आ रहे थे. सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25.
तो मम्मी ने क्या बोला मामा से? मामा मीन्स मम्मीज ब्रदर इज कॉल्ड एज मामा। जो मम्मी होते हैं, हमारी मम्मी के जो भाई होते हैं, उनको हम मामा कहते हैं। और इन इंग्लिश वी कॉल इज एज मेटरनल अंकल या मामा, मम्मी के भाई। तो जब उन्होंने फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा कि हमारी ट्रेन जो है 2 घंटे लेट चल रही है, इसलिए हम 8:25 AM जो मॉर्निंग में पहुंचने वाले थे, उसकी जगह हम 10:25 AM को जो है सुबह पहुंचेंगे। Now we move on to page number 53. Our train was passing through the big city, one big city,